ڈاکٹر شبیر احمد بانو صاحب بیٹھے ہیں. تو ہمارے شعبے جو ہمارا شعبہ فلوریکلچر کا اس نندرشی ہال میں استقبال کرتی ہوں. میں استقبال کرتی ہوں پروفیسر اینڈ ایچ.او.ڈی شعبہ فلوریکلچر تشریف لائے اور آئے ہوئے معزز مہمانوں کا خیر مقدم اور استقبال کریں. وائس چانسلر صاحب جناب پروفیسر نذیر احمد گنائی صاحب, سرفراز احمد والی صاحب, محترمہ مقام محمد ابوبکر احمد صدیق صاحب, ان سے جڑے ہوئے دہلی سے جناب بھارت بھوشن صاحب, آپ کا بہت استقبال ہے اس مجلس میں. اور جو یہاں پہ ہمارے بہت ہی عزیز جو یہ سرمایہ ہے جموں کشمیر کا, اس کے وارث ہیں, اس کے امین ہیں, اور اس کے وائس چانسلر صاحب ابھی ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں لگے رہتے ہیں, تو تھوڑا سا آپ کو تکلیف ہوئی 10-15 منٹ ان کو ایک بیرون ملک جو ایک یونیورسٹی ہیں ہمارے آنریبل وائس چانسلر صاحب یہ تشریف لائے کی طرف سے, سکواسٹ کشمیر کی طرف سے, اپنی فیکلٹی آف ہارٹیکلچر کی طرف سے, اور اپنے ڈویژن آف فلوریکلچر کی طرف سے جو یہ آج کا پروگرام کر رہے ہیں, اور ڈی ایس ٹی جو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے محترم المقام عزت مآب اس جامعہ کے منتظم اعلیٰ جو آج کی اس محفل کی رونق ہے, پروفیسر نذیر احمد گنائی صاحب, پہلے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آج آگے, ان کے آنے سے اس محفل میں 4 چاند لگ گئے. سر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو گجر مہاسبہ ہے اور سارا جو شیڈول ٹرائب کے جو اس وقت نمائندے یہاں پر ہیں, ان میں کافی اتساہ ہے کہ وہ یونیورسٹی کے ساتھ جڑ کے یونیورسٹی کی جتنی ٹیکنالوجیز ہیں وہ اس سے مستفید ہو جائیں. کاشت کریں گے لیونڈر کی کاشت, ابھی کپوارہ میں آلریڈی یہ لگا ہوا ہے. میں کہتا ہوں آپ کو کہ یہ ایک خوشبودار پودا ہے, اس کو نہ آپ کا جو جانور ہے وہ بھی نہیں کھائے گا, اور پھول بھی اچھے ہیں, زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ اگا سکتے ہیں. یہ کیسے اگائیں گے وہ سب آپ کو یونیورسٹی بتائے گی. آپ کا اب آتے ہیں ہم ادویاتی پودوں پر. سب کو پتا ہے کوٹ, ایک تو ریچ کوٹ بھی پتا نا سب کو, ہے نا, تو کتنا ویلیو ہے اس کا. یہ لاؤ لگا لو, آپ کے کہیں بھی اگ سکتا ہے, اور مارکیٹنگ کی کوئی پرابلم ہے نہیں. آپ کو پمب چالن, پمب ہاک, یہ دیکھو اس کے سیڈز, اس کے بیج ہے, اور اس کا یہ بھی اس کی ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس ہے. یہ آپ لوگ گرو کر سکتے ہیں اور روزگار بہت زیادہ کما سکتے ہیں. زیادہ نہیں بولوں گا, تہذبات کرتے ہو کوئی, کیوں صاحب بہت فرق ہوتی, تو اس کا بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, یہ گرو کر سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. اب کینسر جیسی بیماری کے لیے ایک پودا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھا ہوا ہے, یہ ہے پوڈوفائلم ونواگن. یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو تو پتا ہی ہے, جن کو نہیں پتا ہے آپ کے بچوں کو وغیرہ, تو ان کے لیے دیکھو یہ کتنا اہم پودا ہے. اس کی ٹیکنالوجی اگر آپ گرو کریں گے تو مارکیٹ کہیں بھی اس کے لیے ہے. اب یہ سب کو, لیکن ایک وپل ہاک کے نام سے ایک سبزی ہے, بہت ساری چیزیں, چینگ ہے کہ نہیں میڈم بتائیے آپ. یہ بھی بات ہے, ہو سکتا ہے آج آپ کو یہ پودے بھی دیے جائیں. یہ جو ایک پودا ہے آپ کے جوہی جنگلوں میں تھوڑا سا اوپر جاتے تو نیچے کافی یہ ہوتا ہے, پلیکٹرنتھس. میں نے تھوڑا سا پھول کا اس کو نزدیک سے لایا ہے, ٹیکنالوجی دے تاکہ آپ سیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اس پروگرام کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ہم کیسے جو آپ کی اپنی جو آپ کے پاس اپنی ریسورس ہے, یعنی جو آپ کا اپنا ہی ریسورس ہے, جو دیکھا جائے یہ سارے میڈیسنل پلانٹس یا ارومیٹک پلانٹ یا فلاورز, یہ آپ جو گجر اور بکروا جی ان کی ہی مالیت زیادہ ریسورس دیے ہیں, اور آپ ہی ان ریسورس کے محافظ ہو. آپ کے پاس کتنے ریسورس ہیں, کچھ ایسے بھی ادویات ہوں گے, ایسے بھی ہوں گے جو ہمارے پتہ نہیں ہوں گے,
हमें भी नहीं आइडेंटिफाई होंगे, लेकिन आपके जो बुजुर्ग है उनको पता है उसकी वैल्यू क्या है। अगर हम आपकी नई नस्ल को उसमें ट्रेन करें, जैसे आपकी गार्डनिंग है, अगर वो सीखना चाहे गार्डनिंग कैसे करें, फिर वो लोगों में वो दिखाएंगे हम गार्डनिंग कैसे करें, या यही मेडिसिनल प्लांट्स ग्रोथ करना कैसे है, इनको कल्टीवेट करना, ताकि आपके रिसोर्सेज जो आजकल लगा है कि लोग सिर्फ सरकारी नौकरी की तरह चले, ताकि उससे रोक के आप अपना रिसोर्सेज खुद बनाएं। इस हिसाब से ने कहा कि आप अपना एक ग्रुप बनाएं। तो ज्यादा जी ट्राइबल की पॉपुलेशन है ना गुजर बकरवाल की, मेरे ख्याल से कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट है पूरी सब तो ज्यादा है ना। ते ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਫੁੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉੜੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ से। कम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब के लिए की गई है स्पेशली। इसमें बायो रिसोर्स मैनेजमेंट की भी बात की जा रही है और फ्लावर और फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री की भी बात की जा रही है। तो इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही है कि किस तरह से हम जो स्कॉस्ट के पास या और भी यूनिवर्सिटी के पास जम्मू कश्मीर रीजन के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज है, उसको हम जन तक स्पेशली शेड्यूल ट्राइब तक कैसे पहुंचाएं। जो खवातीन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको सेहत बख्शे और ईमान बख्शे। ताकि फोटो आ जाए सही। वो हमारी किताब का इफ्तिताह हो रहा है और ये काबिश है हमारे और खास जो इसके मेहमान हैं आज जो हमारे इस महफिल के, वो है हमारे गुजर और बकरवाल तबके से रखने वाले हमारे भाई और बहन, जो आप दूर दराज इलाकों से आप यहाँ पे आए हो। आप सबको मेरी तरफ से सलाम हो और आपका इस्तकबाल भी है इस यूनिवर्सिटी में। ये अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त कुदरती वसाइल हमको बख्शे हैं इस जम्मू कश्मीर में, चाहे आप वो आसमान से छूते पहाड़ जिनको आप देख रहे हैं, उन पहाड़ों में छुपे वो खजाने, वो देवदार वाला पेड़ जो सारी दुनिया में मशहूर है, उसके साथ में और भी कितने सारे पेड़ हैं, उन पेड़ों में छुपे हमारी जो जड़ी बूटी हैं जिनके बारे में भी जिक्र कर रहे थे मेरे साथी डॉक्टर सिद्दीकी साहब। और ये इतनी बड़ी दौलत है हमारे बीच जो शायद दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। पर जो ग्लेशियर्स, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, उन ग्लेशियर से बहता हुआ वो पानी जो यहाँ वादियों को सरशाब करता है, फिर लहलहाते हमारे खेत। और मैं बता दूं कि हम सब ये देखते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इन सब के महाफिज आप हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं अपनी जिंदगी बसर करते हैं और आप ही इसके महाफिज हैं। तो जो सरकार है, जो दिल्ली में जो सरकार है और जो यहाँ की सरकार है, उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास हमने ध्यान रखना है कि, लेकिन साथ में हमारा ध्यान इस तरफ भी है कि इनके महफिज लोग जो है ना, उनका भी हमने उनकी भलाई में सोचना है, क्योंकि हम ऐसे नहीं छोड़ सकते अपने कुदरती वस्तु। आप शायद बहुत सारे भाई मेरे जानते होंगे कि हमारे जंगलों में छुपी है उसका जो है गलत तरीके से उसका एक्सटॉर्शन का। यहाँ पे डॉक्टर सिद्दीकी साहब उसने ये बताया अपने जो आपकी जो और उन कमजोरियों का हम दूर कैसे, जो आपका तबका है उसको भी साथ में ले चलना है, जो पौध है हम उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, इसका बुनियादी मकसद है कि जो आप बड़े हैं आपको हम समझाएं कि आपने अपना वक्त जाया नहीं करना है। जो कुदरती वसाइल ऊपर वाले ने हमें दिए हुए हैं, हम उनको सही तौर से, ये नहीं कि उनको निकाल के हम जो है कोड़ी के दाम बेचेंगे, हमने उनको सही तौर से कैसे इस्तेमाल में लाना है और ऐसे इस्तेमाल करने से आपकी आमदनी कैसे बढ़ जाएगी, ये जो है ना हमारा एक मकसद है। और ये जो आज का प्रोग्राम है, जो चल रहा है प्रोग्राम, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट, वो इसको सपोर्ट करता है। उन्होंने ये कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू से कि हमने जो बारामूला और कुपवारा, गांधरबल और बांडीपोरा जो डिस्ट्रिक्ट है, हमने वहां पे 5 बड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए आप लोगों के, करीब 100-200 आप भाई लोग उसमें जुड़ेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर
नज़ीर अहमद गनाई साहब का, सर सरफराज अहमद वानी साहब का जो डायरेक्टर रिसर्च है सुकास के। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोफेसर सिद्दीकी साहब का, सर हारून नाइक साहब का, जिन्होंने यहाँ पर लाया और इस महफिल की शान बढ़ाई। मैं लास्ट पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम गुज्जर और बकरवाल भाइयों का जिन्होंने इस महफिल में आकर इस महफिल की शान बढ़ाई। I am highly thankful to faculty of Division of FLA for giving me the chance to present vote of thanks. मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गुज्जर महासभा से हूँ और मैं फ़कीर गुजरी की सरपंच भी हूँ। मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि जो हमारे ये सुकास्ट वाले जो भी है हमारे यहाँ पे डॉक्टर है, तो मकसूदी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमें इस स्कीम के बारे में कुछ पता नहीं था, करके दिखाया किसी ने नहीं है। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने कहा कि आप स्टेट प्रेसिडेंट हो, आप हर एक हल्के से हमें एक एक बंदा जोड़ के दो। मैंने बोला चलो सर मैं आपकी मदद करूँगी, जहाँ तक मेरा हो सका मैं आपकी मदद करूँगी। और मैं इस वक्त इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास करके मैं जो हमारी शालीमार यूनिवर्सिटी है फ्लोरिकल्चर, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे यहाँ पे लोगों को बुलाया और खाने पीने से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ इंतज़ाम किया यहाँ पे। और इन्होंने कहा कि आगे आप लोगों को यूनिट खड़ा करके देंगे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा, मिला भी है बहुत फ़ायदा। जैसे कि हमारे यहाँ पे फ़कीर गुजरी इलाका है यहाँ पे, तो वो बहुत जुड़े चुके, इससे पहले फ्लोरिकल्चर के साथ जुड़े हैं और उनको फ़ायदा भी अच्छा फ़ायदा मिला है। और उम्मीद करती हूँ मैं मेरे जो बाकी पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट के, जैसे कि ये कुपवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट है, बांडीपुरा का डिस्ट्रिक्ट है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है, बाकी शुपियाँ डिस्ट्रिक्ट है, काजीगुंड डिस्ट्रिक्ट है, बाकी बहुत डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमारे जिस इलाका में अभी हमारे अफसर साहिबान नहीं पहुंच पाए, उनको भी हमारे साथ जोड़े। हमारे ट्राइबल के लोग जो है पहाड़ों में रहते हैं, हम यहाँ पे जो हम सिटी के साथ है, हमें फ़ायदा थोड़ा बहुत शुक्र खुदा का मिलता है क्योंकि हमारे शालीमार जो ये नज़दीक है यूनिवर्सिटी हमें हर वक्त बोलती है, हर वक्त कोई भी स्कीम होती है हमें बोलते हैं। अब आइंदा मैं फिर इनसे उम्मीद करती हूँ कि उन इलाकों में भी इंशाल्लाह रहमान पहुँचेंगे जहाँ पे हमारे ये पिछड़े हुए लोग हैं और ख़ास करके हमारी औरतों के लिए भी स्कीम होनी चाहिए। विज्ञान प्रसार एक है, उसमें है जो ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिनका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हमारे साथ चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो मतलब है इसमें यह है कि हमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जो हमारे ये पहाड़ी लोग हैं, हम इनकी कैसी मायशत को हम कैसे इनको बढ़ा सकें, जो कि हम इसमें हम जो है एक तो हम इसमें इनको ट्रेनिंग्स देते हैं, दूसरा हम इसमें इनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बाद हम इन्हीं की ज़मीन पे एक ये तामीरात करेंगे जिसमें जैसे पॉली हाउस हो, उसमें प्लांट मटेरियल दे देंगे। उसके बाद उसमें ये क्या करेंगे, उससे ये अपने साथ साथ अपना रोज़गार बढ़ाएंगे और दूसरों को भी रोज़गार देंगे। प्रोग्राम में आने के लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे जो इज़्ज़त माब ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं स्कॉस्ट कश्मीर के प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब, जिनने यहाँ अपने जो बहुत ही उनका टाइट शेड्यूल था उसके बीच भी वो यहाँ आए, हमारे दरमियान रहे। उसके साथ साथ जो हमारे डायरेक्टर डॉक्टर सरफराज अहमद वानी साहब हैं, इसके साथ साथ DSW जो हमारे हैं प्रोफेसर सिद्दीकी साहब हैं। इस तरह से जो बाकी यहाँ पे मेहमानी खुसूसी हमारे थे, बाकी जो हमारे अहम मेहमान जो हमारे ट्राइबल लोग थे, जिसमें शमीमा जी है, नज़ीर साहब हैं और ये जो अनवर साहब हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के अपने लोगों को यहाँ साथ ला के हमारे साथ बैठे। स्कॉस्ट कश्मीर और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मिलके एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत में जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर में, और उस ट्राइबल कम्युनिटी में खासकर कश्मीर में जो गुजर और बकरवाल तबके से रखने वाले हमारे लोग हैं, उनकी भलाई और बहबूदी के लिए एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम की वसातत से अपने इन जो बकरवाल और गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले भाई लोग हैं, उनको हमने ये समझाना है कि जो कुदरती वसाइल है जो हमारे जंगलों में, हमारे कश्मीर में, उनके माध्यम से हमने उन कुदरती वसाइल की हिफाजत कैसे करनी है, उनको आगे कैसे बढ़ाना है और उन कुदरती वसाइल से हमने इन लोगों को कैसे मुस्तफ़ीद करना है। तो ये प्रोग्राम था आज का, जहाँ कई सारे डिस्ट्रिक्ट से और ज़िलों से लोग यहाँ पे आए और इनको हम यहाँ पे तरबियत देंगे आज कि इन्होंने कैसे करना है, कैसे इन वसाइल का फ़ायदा उठाना है। और साथ में हमने 5 डेमॉन्स्ट्रेशन यूनिट्स बनाने हैं 5 ज़िलों में, और हर डेमॉन्स्ट्रेशन यूनिट में हम फ्री में, मुफ्त में इनको पॉली हाउसेस लगा के देंगे, उनको जो सारा प्लांटिंग मटेरियल है और जो बीज है वो देंगे, उनको बल्ब्स देंगे, उनको शेड नेट्स देंगे जहाँ पे उन्होंने वो उनकी खेती करनी है, और बाकी जो उसके साथ जो सामान उनको चाहिए या हथियार जो चाहिए उसको इम्प्लीमेंट्स वो भी देंगे।
और उसके साथ में हमारे साइंसदान हजरात इन लोगों को वहाँ पे जाके ट्रेन भी करेंगे और ये बताने में कि वो किस तरह से उसकी साइंसी तरीके से उनकी काश्त कर सकते हैं। जुड़े हुए हमारे साइंसदान हजरात हैं। ये सिर्फ पहला मौका नहीं हम ऐसा कर रहे हैं, ये हमारी इस यूनिवर्सिटी के लिए एक रोज़ का मामूल है। हम किसी न किसी कॉलेज में, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी न किसी KVK में इस तरह के जो इवेंट है रोज़ाना हो रहे हैं। और आप जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई लोग हैं, आप भी इसकी काफ़ी ज़्यादा जो इसका प्रचार करते हो अपनी मीडिया के माध्यम से, और जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नॉलेज है वो आप किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं और आप भी हमारी उसमें मदद कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अभी हाल ही में SK ICC में 1-2 दिन का कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन में ये हुआ कि अब हमने इस एग्रीकल्चर को एक नई सूरत हमें कैसे देनी है। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर है, जो बेसिक हम एग्रीकल्चर करते हैं, ज़मींदारी करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, उससे जो हमारी फसलें निकलती हैं सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं रखना है, क्योंकि वो शायद सस्टेनेबल नहीं है आने वाले ज़माने में। उसको हमने आगे लेना है। आगे लेने के लिए हमने उसकी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग करनी है। और उसके साथ में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक और प्रोग्राम है FPOs बनाने का, कोऑपरेटिव्स बनाने का, उनको भी हमने उसमें जोड़ना है। और उससे जो कश्मीर रीजन में या जम्मू कश्मीर रीजन में जो हमने एग्रीकल्चर में बेहतरी लानी है वो एक तरीका है, लेकिन उसमें हमारे जो साइंसदान हजरात हैं उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ का उसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा और जिनको हमने वहाँ तक पहुँचाने फॉरवर्ड